Good afternoon, dear kids. Today we'll be taking our new topic, that is fertilization. My dear kids, in your textbook it must be included in the chapter pollination, but you have an entire new topic, so new understanding will be there. So fertilization, what do you mean by fertilization? See, when a male reproductive part or reproductive egg or reproductive nucleus when unites with female reproductive nucleus, then it's called as a fertilization process. That means there's a fusion of male and female nuclei, or there's a fusion of male and female gamete. ठीक है. So अगर हम flowers की point of view से बात कर रहे हैं, तो in my last video you have seen that flower, bisexual flower, consists of a stamen and it also consists of the carpel, or you can call it as pistil. matlab it consists of a male as well as female part. So the reproduction is quite easy. How? Pollination is quite easy. How it will happen? First we will study that जो मेल के पार्ट से जो एंथर होता है, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. Those pollen grains will be called as a male gamete. Male gamete. ठीक है. And the part in the ovary of pistil will be called as female gamete. The part, the ovule inside the ovary will be called as a female gamete. And when there is a fusion of this male as well as female gamete, it is called as a process of fertilization, that is reproduction. Clear? So first we will study, we have this part. I'll explain first this figure. See, this figure is a female part, that is gynoecium. We know very well this part is called as style. This enlarged is called as ovary. Inside that must be the ovules. This upper part is called as stigma. Getting my point? Further, we will see that inside each ovule, we have different cells. We have to study that. For that, first we will be studying, मैं आपको पोलन ग्रेन का भी दिखाऊंगी स्ट्रक्चर एज वेल एज ओव्यूल का भी दिखाऊंगी. फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट पोलन ग्रेन. ठीक है. पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके से दिखने में लगता है. कैन यू सी दिस? इट हैज़ द टू कवरिंग और डबल वॉल, यू कैन से it is double wall. The external wall is called as exine and the internal wall is called as intine. And inside it you will find there are two nucleus. Each nucleus, actually one nucleus which is divided into two, that is tube nucleus and generative nucleus. Getting my point? And this is called as germ pore. पोर मतलब वो वहाँ पे जो चीज़ पोर होता है ना, एक हम लोग पोर किसको बोलते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर हो गया, पोर बोलेंगे. ठीक है. तो इट्स अ जर्म पोर. जर्मिनेशन होगा इसलिए उसको जर्म पोर बोला है. क्लियर? तो हमने देखा कि एक पोलन ग्रेन जब वो एंथर से निकलता है तो उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल, that is exine outer and intine inner, and its nucleus is divided into two, that is tube nucleus and generative nucleus. आगे आगे देखेंगे कि वो tube nucleus और generative nucleus किस काम में आता है. Let's see. जो tube nucleus होता है वो उस पोलन ग्रेन को एनलार्ज करता है नीचे की तरफ से. क्यों वो एनलार्ज करता है? ताकि वो स्टिग्मा से क्रॉस होके, स्टाइल से क्रॉस होके ओव्यूल के पास जाए. आई रिपीट, ट्यूब न्यूक्लियस स्पेशली
for enlarging the pollen tube, forming the pollen tube. वो जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ज़्यादातर पोलन ग्रेन को खींच के उसको एक ट्यूब बनाता है ताकि वो स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू क्रॉस होके किसके पास जाए, ओव्यूल के पास जाए फर्टिलाइजेशन के लिए. क्लियर? So that is how tube nucleus works. And further, this generative nucleus will be divided into two, that is two sperm nuclei. Generative nucleus will be divided into two, that is two sperm nuclei. I'll repeat the whole process as well as write. Point number 1. A mature pollen grain is double-walled, that is exine outer and intine inner. It consists of generative nucleus and tube nucleus. What is the function of tube nucleus? Tube nucleus forms a pollen tube so that it can reach the ovule. And what about generative nucleus? I'll write it here. Generative nucleus gets divided into two sperm nuclei. Sperm nuclei, ये मेल पार्ट है, ये एंड्रोशियम का पार्ट है. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स पे रिप्रोडक्शन होता है उसी तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस होता है. ठीक है, अभी जो मैंने आपको पार्ट बताया वो पोलन ग्रेन का पार्ट बताया. पोलन ग्रेन इज अ मेल पार्ट. तो मेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और उसका पार्ट बताया. लेट्स गो टू द ओव्यूल. ओव्यूल इज द फीमेल पार्ट. माय डियर किड्स, कैन यू सी this enlarged ovule? In ovule, these two layers, they are called as integuments. What they are called as? Integuments. Getting my point? ये इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे आके ओपन हो जाते हैं. इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल. इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल. दो इंटेग्यूमेंट्स के बीच में यहाँ पे न्यूसेलस है. व्हाट यू मीन बाय न्यूसेलस? इट इज़ नथिंग बट फूड लेडन सेल्स, फूड से भरे हुए सेल्स. इनसाइड इंटेग्यूमेंट नाउ देयर इज एम्ब्रियो sac. दिस इज एम्ब्रियो sac. इट इज रिटन हियर. I'll repeat. मैं अब डिस्कस कर रही हूँ ओव्यूल, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज इनसाइड द ओवरी. व्हाट डज ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ? ओव्यूल के बाहर उसके स्ट्रक्चर में दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं. दो, एक, ये दो. उन इंटेग्यूमेंट्स के बीच में न्यूसेलस होता है, फूड लेडन सेल्स. उनके अंदर इस सब को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो. एम्ब्रियो. फर्दर जहाँ से यहाँ से पोलन ट्यूब आने वाला है इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल. नाउ इफ़ यू नोटिस, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये है 1 2 3. ये एक है, ये एक है, ये एक है 4 5 6 और ये एक है. जो दो दिख रहा है ये एक्चुअली एक होता है 7. सो देर आर 7 cells inside the embryo sac. Let's study them. These are called as, these two parts, these two are called as synergids. These two are called as, जो यहाँ पे एक साइड और एक साइड है, these are called as synergids.
The beach wala is called as egg cell. Egg cell. Getting my point? This nucleus is divided into two. They are called as two polar nuclei. Two polar nuclei. These has three cells which are called as antipodal cells. तो एम्ब्रियो सेक में ओव्यूल के कितने टोटल सेल्स हैं? 7. 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियाई का 2 में डिवाइडेड है, लेकिन हम उसको एक ही कंसीडर करते हैं. सो 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 cells. One more time, I'll figure out again. I'll draw the figure for you so that you can understand very well. So this is your ovule. These two parts are the integuments. Between integuments is the nucellus, that is food-laden cells. Here this portion, from here the pollen tube will come. This portion is called as micropyle. Here there are 3 cells. These two are called as synergids. And the center one is called as egg cell. Here there is one nucleus which is divided into 2 polar nuclei. And here at this edge there are 3 which are called as antipodal cells. Getting my point clear? This entire is called as embryo sac. Are you getting my point very clear? So this is the entire structure of each ovule. And similarly I will also draw pollen grain. ये एक pollen grain है जिसके स्ट्रक्चर में बाहर के पार्ट को एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं. It consists of 2 nucleus, generative nucleus and tube nucleus. Getting my point? ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन है कि वो ट्यूब बनाता है. तो जैसे ये ऐसे हुआ, अब ट्यूब निकलना शुरू होगा, तो ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब बनाना शुरू किया. और जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 स्पर्म न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाता है. 2 स्पर्म न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाता है. दिस आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मेल पार्ट, दैट इज पोलन ग्रेन. Clear? Now the part is clear. Shall we jump on to the next part? Okay. Now the fertilization process comes. How is the fertilization process? I'll erase so that you can understand. जैसे ही फ्लावर के थ्रू, ये फ्लावर है, सपोज नाउ ये आपका फ्लावर है. दिस इज योर फीमेल पार्ट एंड दिस इज द एंथर फ्रॉम वेयर द पोलन ग्रेन विल कम टू द स्टिग्मा हियर. जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, पोलन ट्यूब बनेगा और वो ट्यूब स्टाइल के थ्रू माइक्रोपाइल में जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? अब माइक्रोपाइल कहाँ है? यहाँ, मतलब पोलन ट्यूब यहाँ पे आ गया. अपने 2 स्पर्म न्यूक्लियस लेकर, ये पोलन ट्यूब ही है, पोलन ट्यूब आ गया ओव्यूल के पास. अब वहाँ से एक स्पर्म न्यूक्लियस डायरेक्टली जाएगा 2 पोलर न्यूक्लिया के पास और वहाँ पे फ्यूज़ करेगा. एक स्पर्म न्यूक्लियस, 1 स्पर्म न्यूक्लियस विल बी
fusing with two polar nuclei, and this process is called as triple fusion. This process is called as triple fusion. And as I said you that pollen grain is having two sperm nuclei. एक पोलर न्यूक्लिया के साथ हो गया फ्यूज, एक एग सेल के साथ होता है. एक किसके साथ होता है? एग सेल के साथ. तो वन स्पर्म फ्यूजेस विथ एग सेल and from here it will come the seed. Getting my point clear? Are you getting my point very clear? So दो sperm थे, एक एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा, एक पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ होगा. इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. सो आई विल एक्सप्लेन अगेन. ये हमारा फ्लावर, दिस इज द फीमेल पार्ट, and inside the ovules stigma. Here is the male part, this is the anther. एंथर में से पोलन ग्रेन बना और यहाँ पे लैंड किया. जैसे ही लैंड किया उसका पोलन ट्यूब उसको स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के पास लेकर गया. ठीक है, ओव्यूल के अंदर कैसा आता है देखो, ये ओव्यूल, यहाँ से माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करता है और दो स्पर्म न्यूक्लियस छोड़ देता है. ये पोलर न्यूक्लिया है. एक स्पर्म न्यूक्लियस आपका पोलर न्यूक्लिया के साथ मिल जाता है और एक स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ मिल जाता है, एग सेल के साथ. सो वन स्पर्म प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और यहाँ पे वन स्पर्म प्लस वन एग सेल. गेटिंग माई पॉइंट? दिस प्रोसेस, क्योंकि ये तीन बन रहे हैं, एक स्पर्म सेल है, दो पोलर न्यूक्लिया हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन. और ये पूरे प्रोसेस, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार इधर फ्यूजन हो रहा है, एक बार इधर फ्यूजन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? ओके. तो ये हम लोग का हो गया फर्टिलाइज कैसे होता है. ठीक है, लेट्स सी फर्दर क्या होता है. जैसे ही फर्टिलाइज हो गया, अब जो ओवरी है, ठीक है, ओवर आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद फ्लावर का क्या हाल होता है? फ्लावर के पेटल्स वगैरह गिर जाते हैं, कैलिक्स का कोई काम नहीं होता है, ओवरी बड़ी होती जाती है. तो ओवरी जो आप फ्रूट खाते हो, दैट इज़ द ओवरी. इनसाइड जो ओव्यूल है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है सीड में. तो आपका जो सीड आपने देखा है ना, आप मैंगो खा रहे हो तो उसके अंदर सीड निकलता है, तो वो जो मैंगो का मेन पार्ट खा रहे हो, दैट इज़ द ओवरी ऑफ दैट फ्लावर. हर एक फ्रूट आपका एक फ्लावर से ही आएगा. ठीक है, तो फ्लावर के बाकी सब पार्ट तो झड़ जाते हैं, बाकी जो ओवरी होता है वो थिक होते जाता है, वो बढ़ते जाता है, वो फ्लैशी होते जाता है और अंदर का सीड होता है. सो ओवरी इज द पार्ट विच यू ईट, दैट इज़ अ फ्रूट. ठीक है, ओव्यूल्स आर द सीड्स. ओके. अब जब आपने देखा था एग सेल्स और सिनर्जिड थे, वो एम्ब्रियो बन जाएगा. अभी हम लोग आगे देखेंगे सीड के स्ट्रक्चर में कि क्या क्या होता है. अभी के लिए जो आपने देखा था ना, ओव्यूल के अंदर एग सेल और दो सिनर्जिड्स थे, वो एम्ब्रियो बन जाएगा सीड का. और जो न्यूक्लियस था, जो पोलर न्यूक्लिया थे, वो एंडोस्पर्म बन जाएगा. जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो टेस्टा और टेगमेंट बन जाएंगे, सीड कोट मतलब कहलाएंगे सीड के. गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो ओव्यूल जो था वो पूरा एक सीड बन जाएगा. जो आप निकाल के फेंक देते हो ना, वो सीड आपका ओव्यूल है. वही ओव्यूल जो फर्टिलाइज करके, पोलन के साथ फर्टिलाइज करके उसने सीड दिया. गेटिंग माई पॉइंट? और वही ओवरी जो है वो फ्रूट बनी हुई है, उसके अंदर सीड है. ठीक है, तो वो फ्लावर का हाल क्या हुआ? तो फ्लावर के पत्ते वत्ते सब झड़ गए, ओवरी फ्रूट बन गया
ओव्यूल सीड बन गए, और जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे वो सीड कोट बन गया। सीड बन गया तो सीड का कवरिंग होता है ना, वो ओव्यूल का कवरिंग मतलब सीड का कवरिंग बन गया। गेटिंग माई पॉइंट। एंटीपोडल सेल्स का क्या हाल हुआ? डिसऑर्गेनाइज्ड, वो वैनिश हो गए। ठीक है, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन लर्न कि फ्लावर का आखिर में हाल क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पत्ते झड़ जाते हैं, पेटल्स ड्राई ऑफ, कैलिक्स फॉल ऑफ, ओवरी फ्रूट बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, एंटेग्यूमेंट जो होते हैं, जो आउटर और इनर कवरिंग होते हैं ओव्यूल के, वो सीड के आउटर और इनर कवरिंग हो जाते हैं, मतलब टेस्टा और टेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इसी को कंटिन्यूटी में जाएंगे हम लोग सीड चैप्टर में। थोड़ा सा ही लूँगी बट विल टॉक अबाउट इट। अब जब सीड बन गया तो अब आप यहाँ पे एनलार्ज ये देख रहे हो, ये पूरी आपकी ओवरी है, ये जो आप खाते हो ये ओवरी है, और ये वही ओव्यूल है जो फर्टिलाइज हुआ। पोलन ग्रेन ने जहाँ पे आके न्यूक्लियस के साथ डबल फर्टिलाइजेशन किया, वो यही पार्ट है सीड। ठीक है, ओके। अब सीड का कुछ देखेंगे तो सीड इज़ अ राइपेंड ओव्यूल। अब सीड में क्या क्या होगा, मैंने आपको कहा था जो सिनर्जिड्स हैं वो इसके सिनर्जिड्स और एग सेल है वो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो में मतलब मैं बताऊंगी कि सीड को जब आप प्लांटेशन करते हो तो जहाँ से वो सैपलिंग आता है वो उसका एम्ब्रियो है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बारे में मैं शॉर्ट में बात करूँगी ताकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी में पार्ट रहे तो आपको अच्छा लगेगा। तो डायरेक्टली मैं आऊँगी इधर। सी वही सीड जो ओव्यूल था, अब वो देखो क्या बना है, वो सीड बना है। अब सीड अगर दो हिस्सों में कट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं डायकोटाइल, डायकोटिलिडन। अगर वो दो हिस्सों में कट नहीं होता है हम लोग उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडन। क्लियर? अब आपने देखा कि इसके ऊपर डबल कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है टेस्टा, जो इनर कवरिंग है टेगमेन। क्लियर? अब यहाँ पे ये वाला है एम्ब्रियो, जो आपके सिनर्जिड्स और ये थे ना ओव्यूल में, सिनर्जिड्स और एग सेल, वो बन गया यहाँ पे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में सैपलिंग निकलता है। जैसे आप इस सीड को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस दोगे तो ये सैपलिंग में फॉर्म होगा, मतलब एक छोटा सा प्लांट निकलना शुरू होगा। तो जहाँ से वो प्लांट निकलेगा दैट पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। अब वो प्लांट इस स्ट्रक्चर में निकलेगा कि कुछ नीचे के हिस्से में जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्यों रेडिकल बोलते हैं? बिकॉज उसके रूट्स बनने वाले हैं। और ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मतलब शूट्स बनने वाले हैं, शूट्स मतलब ऊपर की तरफ जो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये दो हिस्सों में कट हुआ है, इनको बोलते हैं कॉटिलिडॉन। क्लियर हो रही है बात? आपने बीन सीड देखा है, चवली खाते हो, अगर उसमें यहाँ पे डार्क स्पॉट देखो, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। अब वो हाइलम जो ओव्यूल में माइक्रोपाइल था वो यहाँ पे हाइलम कहलाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी द डार्क स्पॉट, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल बोल सकते हैं या हाइलम बोलेंगे, उसके आउटर पार्ट को हाइलम बोलते हैं। क्लियर? तो आ रही क्या बात समझ में कि किस तरह से एक फ्लावर में से एक पोलन ग्रेन आया, एक ओव्यूल आया, दोनों ने फर्टिलाइज किया और एक सीड दिया। तो जो ओव्यूल्स के पार्ट थे वही सीड में आए हैं, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो आई विल स्टॉप इट हियर and let's see how far we can understand this topic very well in my next video. God bless.